because it is a pre-board exam. ठीक है, तो we are discussing today the exercise questions of chapter number 16, that is environmental issues. ठीक है, yesterday we have completed that chapter. So see the question number 1. What are the various constituents of the domestic sewage, and discuss the effect of the sewage discharge on a river. ठीक है, तो कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं डोमेस्टिक सीवेज में, सोचिए. एनीबॉडी हु वांट टू गिव द आंसर? वेस्ट फ्रॉम टॉयलेट, किचन, लॉन्ड्री. पे थोड़ा सा जोर से बोलेंगे बेटे. वेस्ट फ्रॉम टॉयलेट, The किचन, waste that are लॉन्ड्री. generated from toilets, laundry, kitchen. यस, देखो बेटे, इफ इट इज अ डोमेस्टिक सीवेज, ठीक है, तो डोमेस्टिक सीवेज है तो उसमें वो कहते हैं कि इट कंटेन्स द रिमेन्स ऑफ द फूड दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर. ठीक है, इफ यू वॉश द डिशेस एट इन योर किचन देन इट कंटेन्स सम फूड रिमेन्स एंड दैट कम्स इनटू दैट वाटर. ठीक है, तो डोमेस्टिक सीवेज जो है उसमें फूड के रिमेन्स हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में. इफ यू हैव डन वॉशिंग ऑफ योर क्लोथ्स, ठीक है, तो दैट आल्सो कंटेन द डिसॉल्व सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एक्सेट्रा. ठीक है, इफ यू यूज द वाटर फॉर फ्लशिंग द टॉयलेट्स देन इट आल्सो कंटेन्स द ह्यूमन एक्सक्रीटा. ठीक है, बिसाइड दिस सम सिल्ट पार्टिकल्स आर आल्सो देयर, और छोटे मोटे जो हैं रॉक्स के रिमेन्स हो सकते हैं. तो ये सारी चीजें जो है वो डोमेस्टिक सीवेज में आ जाएंगी. अब वो कहते हैं कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द सीवेज डिस्चार्ज ऑन अ रिवर इफ यू आर नॉट properly purify that water. Okay, if you do not detoxify that water and you directly discharge it on the river, so naturally it cause the pollution of the river. ठीक है, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अगर थोड़े से भी जो है सीवेज वाटर जो उसके अंदर मिक्स हो जाता है तो इट इज रिच इन ऑर्गेनिक एज वेल एज सम ऑफ द inorganic dissolved salts, so it causes the pollution of that river. ठीक है, and one very important thing is that it is very easy to separate that things that which can be easily separated through sedimentation or filtration, which are physically visible to you, but it is very difficult to remove those dissolved salts, ठीक है, which are mixed in water. And they may be the nitrates or phosphates that are there in the water. ठीक है, so how we can remove this, that you also know, you have studied about the sewage treatment plant. So here you must remember the role of the microorganisms, and these microorganisms, they do the consumption of these organic salts which are mixed in water. ठीक है, देखो साइड बाय साइड मैंने उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ. यहाँ पे देखिए, ये इजीली आपको कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे, ये एनसीईआरटी की वेबसाइट है. What he has written in this, what are the various constituents of domestic sewage? So domestic sewage contains 4 type of impurities. ठीक है बेटे, soil particles तो रहेंगे, sand and slate is there, then some colloidal particles. And what are these colloidal particles? These may be the inorganic or the organic materials. ठीक है, organic materials में it may be the fecal matter, bacteria is also there. ठीक है, paper and clothes हो सकते हैं. ठीक है, you use water for dumping various type of things, ठीक है, for washing or any other purpose, तो वो सारी चीजें जो है वो सीवेज के अंदर चले जाती हैं. तो dissolved salts में I have already told you it may be the salts of nitrate, phosphates, sometimes ammonia is also there. ठीक है, sodium, calcium and other nutrients, they are also present in trace amount. और pathogens भी रहेंगे. ठीक है, तो domestic sewage because it contains organic substances, so there are some pathogens that are they are feeding on these organic salts. ठीक है, they are also the pathogens of various diseases. तो कहते हैं कि टाइफाइड, कॉलरा, डायसेंट्री, डायरिया, ये सब डिजीजेस जो हैं वो हो जाती हैं अगर हम डोमेस्टिक सीवेज जो है उसको डायरेक्टली किसके अंदर डाल देंगे, तो रिवर के अंदर डाल देंगे. ठीक है बेटे, अब शॉर्ट में देखो उन्होंने लिखा है, पर जब हमें ये एग्जाम में आता है वी हैव टू इलैबोरेट इट. ठीक है, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, because you know that these salts when they get mixed with water then they cause the enormous growth of various plant and animal species. ठीक है, animal species पे तो इसका इफेक्ट पड़ना है, plants के ज्यादा growth होने से they deplete the oxygen and they also causes the increase in the mortality rate of the animals. ठीक है, pathogenic bacteria they rises in the water bodies. ठीक है, pathogenic bacteria water bodies जो इसके अंदर rise होने लग जाएंगे. Then aging of the river takes place because if the mortality rate of the animal as well as plant species they increase,
then all of these they get sedimented at the bottom of the river, and as a result the river becomes a shallow river. ठीक है, because of accumulation of this silt and decaying matters. तो उसकी वजह से एजिंग जल्दी हो जाएगी रिवर की, and increase in the value of BOD. ठीक है, because organic waste it is present in the sewage, and that sewage water when get mixed with this water body, so you know that organic sewage, organic salt उसके अंदर ज्यादा है, तो उसकी वजह से BOD की यानी biological oxygen demand जो है वो भी बढ़ जानी है, because microorganisms they are also present in this sewage water and they do the, ठीक है, decomposition of these organic salt, तो इसलिए BOD की वैल्यू जो है वो polluted water में ज्यादा होगी. ठीक है, फिर वो कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट रिवर. ये तो आपको मालूम ही है कि ओवर क्राउडिंग हो जानी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आ जाएंगे, तो उसकी वजह से ज्यादा प्लांट स्पीशीज विल ग्रो. ठीक है, एंड ज्यादा से ज्यादा प्लांट स्पीशीज जो है वो ग्रो होने लगेगी. जो एरिया पॉल्यूटेड है रिवर का, वहां से जो भी फौना वहां पे प्रेजेंट है, एनिमल्स हैं, वो माइग्रेट करके जो लेस पॉल्यूटेड एरिया उसकी तरफ चले जाएंगे. सो ओवर क्राउडिंग फ्लोरा की भी हो जानी है, फौना की भी हो जानी है, और उस वजह से, ठीक है, मोर्टिलिटी रेट जो है वो प्लांट एज वेल एज एनिमल स्पीशीज का यहाँ पे बढ़ जाएगा. ओके बेटे, तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस तरीके से आपने इसका आंसर देना है कैटेगरीज की फॉर्म में. अब वो कहता है कि लिस्ट ऑल द वेस्ट दैट यू जनरेट एट योर होम, स्कूल और ड्यूरिंग योर ट्रिप्स टू सम अदर प्लेसेस. कुड यू वेरी इजिली रिड्यूस द जनरेशन ऑफ दीज वेस्ट? व्हाट वुड बी डिफिकल्ट और अदर इम्पॉसिबल टू रिड्यूस? ठीक है, पहले तो आप ये बताइए कि कितने तरह का वेस्ट जो है वो आपके होम में, स्कूल में, या फिर आप कहीं पिकनिक जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, तो जनरेट हो सकता है. व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट इट इज? यस बेटे, एनीबडी वांट टू गिव द आंसर? ठीक है, इट मे बी द प्लास्टिक वेस्ट. देखिए, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी ट्रिप, तो आप, ठीक है, चिप्स लेके जाते हैं, वेफर्स लेके जाते हैं, बिस्किट्स लेके जाते हैं अपने साथ, तो आप जो है कुछ फ्रूट्स लेके जाते हैं. ठीक, तो ये सारा वेस्ट हो सकता है. इट मे बी द पेपर वेस्ट, इट मे बी द प्लास्टिक वेस्ट. ठीक है, अगर पॉलिथीन की फॉर्म में आपकी जो भी चीजें हैं वो पैक्ड है. अब देखिए, होम से कौन सा वेस्ट आ सकता है? ठीक है, तो होम जो है उसमें से कुछ प्लास्टिक वेस्ट हो सकता है, पेपर वेस्ट हो सकता है. इट मे बी योर ओल्ड नोटबुक्स. ठीक है, न्यूज पेपर्स आर लाइंग एट योर होम दैट यू वांट टू डिस्कार्ड. ठीक है, स्कूल में पुरानी नोटबुक्स हो सकती हैं, फाइल्स हो सकती हैं. It may be some broken desks or chairs at your school. ठीक, तो ये सारा वेस्ट जो है उसको ओवरऑल अगर कंसीडर किया जाए तो ये प्लास्टिक, पेपर वेस्ट, मेटालिक वेस्ट हो सकता है. अब वो कहते हैं कि हाउ कैन यू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ दीज वेस्ट? ठीक है, तो 3 मेथड्स वी कैन अडॉप्ट. ठीक है, वी हैव टू फर्स्ट डन द सॉर्टिंग ऑफ दैट वेस्ट. जो भी हमारा वेस्ट है उसकी हमने सॉर्टिंग कर लेनी है. उसमें से रिसाइकेबल वेस्ट जो है उसको आप रिसाइकलिंग के लिए कबाड़ी वाला के पास आप सेल कर देंगे. एंड इफ देयर इज सम थिंग्स दैट कैन बी मेक दैट वी कैन अगेन रीयूज, तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं. ठीक है, कुछ मेटालिक कैन्स हैं, या फिर वो कहते हैं कि कुछ प्लास्टिक के आइटम्स हैं जो पूरी तरीके से ब्रोकन नहीं है, तो यू कैन यूज इट फॉर वेरियस थिंग्स. यू कैन स्टोर डिफरेंट आइटम्स, किचन आइटम्स इन देम. ठीक है बेटे, और दूसरी तरीके से आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं जनरेशन का, कि इंस्टेड ऑफ बाइंग दोज थिंग्स व्हिच आर कमिंग एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ सम पैकेजिंग, ठीक है, यू कैन यूज योर ओन मटेरियल टू गेट दोज थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, मार्केट से जो भी आपने चीजें लेनी है उसके लिए आप अपना मटेरियल जो है वो लेके जाइए. आप क्लॉथ बैग्स लेके जाइए शॉपिंग करने के लिए. ठीक है, आप अपने मेटालिक कैन्स जो है घर से लेके जाइए. स्टील के अपने जो भी यूटेंसिल्स हैं यू कैन यूज फॉर गेटिंग मिल्क फ्रॉम द मार्केट. और ठीक है, if you have to buy some vegetables or fruits, then you can make use of your own cloth bag instead of getting polythene bags from the shopkeeper. Okay बेटे, तो कहते हैं कि कौन सा ऐसा वेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और इम्पॉसिबल है जिसको कि रिड्यूस करना. सोचिए कौन सा वेस्ट हो सकता है जो कि काफी डिफिकल्ट हो सकता है. देखो बेटे, इफ वी डिवाइड, मैडम आवाज नहीं आ रही. हाँ जी गुरप्रीत, आवाज नहीं आ रही है? क्लियर नहीं आ रही मैम, कट हो रही है. No ma'am, it's audible. I think बेटा आपके नेटवर्क इशू होगा. It's audible ma'am. हाँ जी, निधि को तो आ रही है, तो निधि तो जवाब दे रही है ना. आप थोड़ा सा देखो. मैं दोबारा ज्वाइन करना है. हाँ, आप फिर से ज्वाइन कर लो, नो प्रॉब्लम.
ठीक है बेटे, what would be difficult or rather impossible to reduce? So you know that we have broadly categorized the waste into two types. It may be the biodegradable or it may be the non-biodegradable waste. ठीक है बेटे, we can easily decompose this biodegradable waste, क्योंकि हम इससे क्या बना लेंगे, कंपोस्ट बना लेंगे, but it is not possible for the proper management of this non-biodegradable waste. ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम इंसिनरेटर्स का यूज करते हैं, पर वो इंसिनरेटर्स जो है वो मासेस जो है वेट जो है उस पर्टिकुलर वेस्ट का उसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, पर फिर भी हमें एक प्रॉपर प्लेस चाहिए उसके डंपिंग के लिए, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको रिड्यूस करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओके बेटे, आप सी द थिंग दैट इज गिवन बाय द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हमने इसका आंसर देखो किस तरीके से लिखा है। तो वेस्ट मटेरियल जनरेटेड एट योर होम में भी पेपर वेस्ट, डिस्पोजेबल कप्स, क्लॉथ, प्लेट, स्पून्स, प्लास्टिक इनवेल्प हो सकते हैं, डिस्कार्डेड फूड हो सकता है। ठीक है, वेस्ट दैट इज जनरेटेड एट योर स्कूल, पेपर हो सकते हैं, चॉक्स हो सकते हैं, प्लास्टिक इनवेल्प्स हो सकते हैं। एंड वेस्ट मटेरियल जनरेटेड व्हेन यू गो फॉर अ ट्रिप, इट मे बी पेपर, डिस्पोजेबल कप्स, प्लेट, स्पून्स, प्लास्टिक इनवेल्प्स और डिस्कार्डेड फूड। ओके, so no, we cannot reduce the generation of these waste easily, but few can be reduced. The waste belong to two categories. मैंने पहले बता दिया आपको, biodegradable and non-biodegradable. So it is impossible or rather difficult to reduce the discarded food like peel of the potato, peel of bananas, etc. We can do one important thing to reduce the wastage of a food. ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग आंसर है। उसने ये कहा है कि अगर हमारे पास पोटैटो पील है, बनाना पील्स हैं, तो इस तरह का जो वेस्ट है उसको हम अगर प्रॉपरली डिस्कार्डेड फूड जो है उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करें किसी तरीके से वेस्टेज फूड का, तो हम हमारे लिए जो है इस तरह के वेस्ट को डिफिकल्ट है काफी ज्यादा इसको रिड्यूस करना। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होना चाहिए। अगर हम बनाना पील्स की या पोटैटो पील की भी बात करते हैं बेटा, वो बायोडिग्रेडेबल के अंदर ही आएगा और उसको इजीली डिकम्पोज किया जा सकता है, उसकी हम कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक, नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट मेजर्स नीड टू बी टेकन टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द फुल मैकेनिज्म। ठीक है, what are the causes that are responsible for global warming? So the major cause is increase in the concentration of the greenhouse gases. Greenhouse gases. ठीक है बेटे, ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसमें two main gases are there, that is CH4, methane is there, then carbon dioxide is there. ठीक है, but beside this we have suspended water vapors that are present in the air, they are also responsible for this greenhouse effect. अब वो कहते हैं कि what are the effect of the global warming? तो I have discussed so many effects of the global warming. तो उसमें मैंने आपको बताया था the average temperature of the earth increases by 1 degree Celsius every day. अगर हर दिन 1 degree Celsius से बढ़ रहा है तो सोचिए 1 year के अंदर कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके बेटे, नेक्स्ट इज कि पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स दे कैन इजीली मेल्ट। ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं if there is an increase in the concentration of the carbon dioxide, then this means the photosynthesis rate it also increases in plants, and so many plants they are generally grow at a larger number in those areas where warmer climatic conditions are there and adequate rainfall is there. Okay but it has also have a bad effect on the animals. Okay, that are the aquatic animals or those animals which are enjoying the terrestrial habitats because the conditions are not suitable for them. ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं कि काफी सारी जो चीजें हैं उसको आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ओके बेटे, व्हाट मेजर्स नीड टू बी टेकन टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, तो उसमें भी आपको बताया था आपकी बुक के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको रिड्यूस करने के कई मेथड्स दिए हुए हैं। तो उसमें से पहला है कि प्लांटिंग ऑफ अ ट्री शुड बी डन एट अ लार्जर रेट। ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है ट्रीज जो है उनको लगाया जाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है उसका जो रेट है उसको कम किया जाना चाहिए। So there are some of the agriculture method I have discussed, zoom cultivation. So we have to stop such type of cultivation which is generally prevalent in the northern part of the country. तो आपको बताया था कि they cut the trees at a very larger rate and later do the cultivation at that place. तो उससे deforestation बहुत ज्यादा होता है। तो fossil fuels का जो use है that you should minimized.
ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू सर्च फॉर सम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कुछ ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो है एनर्जी के वो हमें फाइंड आउट करने चाहिए जो कि इको फ्रेंडली मेथड हो। ठीक बेटे, उसके अलावा कहता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको रिड्यूस करने के लिए आपकी सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो ओवर पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है। वी हैव टू डिवाइस सम मेथड्स बाय व्हिच यू कैन कंट्रोल योर पॉपुलेशन। ठीक, तो पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल करना जो है वो जरूरी है। इफ यू आर यूजिंग सम एनर्जी रिसोर्सेज देन दिस एनर्जी रिसोर्सेज देयर यूसेज शुड बी एफिशिएंटली डन। ठीक है, वी शुड नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं है कि ओवर यूज कर रहे हैं सो दैट दिस रिसोर्सेज कैन नॉट बी अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन, दैट यू हैव टू discuss. Okay bete, now see what is the solution given in the NCERT website. So here he has written, you are supposed to answer in examination like this. First you have to tell increase in the atmospheric concentration of the greenhouse gases. It rise in the atmospheric temperature by 0.6 degrees Celsius. ये पुराना डेटा बेटा 1 डिग्री सेल्सियस हो गया अब। ठीक है, and this has been confirmed by intergovernmental panel or climatic change in the report of 1991 to 92 में ये पता लगा था। तो ये काफी पुराने डेटाज हैं, अगर हम इसको नहीं भी लिखते तब भी चलेगा हमारा। This predictable change in near future may affect climate, sea level, range of species distribution. आपको बताया था कि if the conditions are not favorable in the habitat of the species, then they left their habitat and they migrate towards some other habitat where proper conditions are present. ठीक है, फूड प्रोडक्शन एज वेल एज फिशरी रिसोर्सेज इन द ओशंस वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब कॉजेस क्या हैं, तो इस तरह से शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। यहाँ इसने मेंशन नहीं किया पर आप जरूर मेंशन करें, इट इज CH4, CO2 एंड वाटर वेपर्स। इंक्रीज इन ऑटोमोबाइल एंड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एंड चेंज इन लैंड यूज। देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड एरोसोल्स दैट आर एमिट्स जनरली फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर्स और एरोप्लेन्स, इसका कॉज हो सकते हैं। इंक्रीज इन द पार्टिकुलेट मैटर इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ओके बेटे, इफेक्ट क्या होंगे देखिए शॉर्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड, fertilization effect is there. Many species of plants being sensitive to temperature will die because there is a sudden increase in the temperature and their place will taken over by scrub vegetation. ठीक है बेटे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज देयर, तो चाहे आप फ्लोरा एंड फोना लिख लें, उनकी स्पीशीज का लॉस हो रहा है, चाहे बायोडाइवर्सिटी लिख लें। rise in the sea level, so the coastal areas they easily get drawn. Then possibilities of drought and flood is also there. ठीक है बेटे, अगर एक्सेसिव ह्यूमिडिटी हो जाती है तो फ्लड आ जाएंगे और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ड्रॉट की कंडीशन रहेगी। देन वो कहते हैं इरप्शन ऑफ द प्लांट डिजीजेस, पैंडेमिक्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं अलग अलग जो है प्लांट डिजीजेस के फॉर्म में। हाँ जी गुरप्रीत, आवाज कैसे कट रही है? अच्छा कोई बात नहीं बेटे, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम इज देयर। आई थिंक रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैम प्रॉपर्ली ऑडिबल है बेटा, आई थिंक आपके नेटवर्क इशू होगा। हाँ जी, अदरवाइज ऑडिबल है। कोई बात नहीं बेटा, गुरप्रीत रिकॉर्डिंग इज देयर विद यू सो यू कैन लिसन इट अगेन। ठीक है बेटा, चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न दैट इज नोन एज एल नीनो इफेक्ट। ठीक है, तो कहते हैं कि व्हेन देयर आर द मंथ्स ऑफ रेनफॉल देन रेनफॉल इज नॉट अकरिंग इन दैट टाइम, तो उसकी जगह पे वो कहता है कि इट इज शिफ्टेड टू सम अदर मंथ। ठीक है, अगर जून जुलाई का मंथ है तो उस समय रेनफॉल नहीं हो रही है और उसके बाद विंटर की जो मंथ है उसमें रेनफॉल हो रही है, इसे एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कौन से मेथड है जिससे कि आप ग्रीन हाउसेस गैसेस की एटमॉस्फेरिक कंसेंट्रेशन जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं? तो so many methods are given here, reducing the greenhouse emission by limiting the use of fossil fuels, and you have to search for some alternative renewable resources of energy. It may be wind energy, solar energy. ठीक, increases the vegetation cover, mainly the forest for photosynthetic utilization of carbon dioxide. तो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट जो है उसको आपको रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, वेजिटेशन जो है ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए ताकि जो एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। फिर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं उसको मिनिमाइज करना चाहिए बिकॉज उसमें से N2 एमिशन होता है। ठीक है, वी हैव टू search for some other compounds that may be the substitutes for the chlorofluorocarbon, because you know that these chlorofluorocarbons, they are the severe pollutants nowadays
and they are also responsible for causing the depletion of the ozone layer. ठीक है बेटे, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे कोई और मेथड जो है रेफ्रिजरेशन का यूज किया जाना चाहिए। ठीक, वेरी इजी, इस तरीके से आंसर देंगे आप। उसके बाद देखिए मैच द कॉलम आपको दिया गया है। कॉलम ए के अंदर आपको अगर कैटालिटिक कन्वर्टर मिलता है तो आप उसको किसके साथ मैच करेंगे? Carbon monoxide, nitrogen oxide. Yes, it is used for detoxification of carbon monoxide and nitrogen dioxide and later convert them into less toxic gases. Okay, but electrostatic precipitators. Particulate matter. Yes, it is used for reducing the amount of particulate matter or absorption of the particulate matter. Then if you have to use earmuffs आप कब यूज करेंगे? High noise level. Yes, नॉइज लेवल के लिए। एंड लैंडफिल्स जो है उसको आप सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए यूज करेंगे। ओके बेटे, now if you have to write the critical notes on all of these terms, eutrophication, biological magnification, groundwater depletion and base for its replenishment. देखो बेटे, third one is not directly given in your book. ठीक है, there is a big account of the eutrophication is there, biological magnification is there, you have to give the example of that DDT, या फिर आपको मैंने मिनी मैटर डिजीज के बारे में भी बताया था, उसका एग्जांपल आप बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में दे सकते हैं। एंड अगर आपको यूट्रॉफिफिकेशन चाहे उसमें कोई एग्जांपल देना है तो आप कश्मीर के अंदर जो डल लेक है ना उसका एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, डल झील जो है उसका आप एग्जांपल दे सकते हैं, वो रिसेंटली ही डेड लेक में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा बता रही हूँ, यूट्रॉफिफिकेशन में आप ये लिखेंगे कि व्हेन द डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स, phosphates and some other salts, inorganic salts, when they get mixed in the water bodies, what they cause the enormous growth of the plant species. Okay bete, and this enormous growth of plant, they generally deplete oxygen, that is the dissolved oxygen present in that water body, and as a result what is happened, the oxygen is not available for the aquatic life that is present in that particular water body. And as a result, the mortality rate of the species, plant as well as animal, takes place. And these species, they later accumulate at the bottom of that water body in the form of sediments, and this lowers the surface. ठीक है, सरफेस जो है वाटर को स्टोर करने की वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे एचनिंग होने लग जानी है बिकॉज ऑफ accumulation of these sediments in the form of slits or some dead bodies of these animals or plants. सो शैलो हो जाएगी लेक, वाटर उसमें लेस हो जाएगा, वेजिटेशन की ग्रोथ ज्यादा होती जाएगी, तो इंस्टेड ऑफ लेक वो किस में कन्वर्ट हो जानी है, एक मार्शी लैंड में कन्वर्ट हो जानी है। और इस तरह से यूट्रॉफिफिकेशन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ रहा है, इसलिए आजकल हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिफिकेशन। ठीक है बेटे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में यू हैव टू राइट कि देयर आर सर्टेन टॉक्सिक केमिकल्स एंड व्हेन दे गेट मिक्स्ड इन द वाटर बॉडीज व्हाट हैपन, दे बिकम a part of the food chain that is operating in that water body. ठीक है, they enters from one trophic level to the next trophic level, and what is the special thing about them, that these particular poisonous compounds or toxic compounds, they cannot be easily metabolized in the various metabolic reactions that are occurring in the body. So as a result, they keep on accumulating in the next trophic level, and as a result, its concentration consequently it increases, it becomes very higher at the last trophic level. Okay, which is the final trophic level, and it causes harmful effects in that trophic level. You have to give the example of the sea birds. कि सी बर्ड्स के अंदर डीडीटी का कंसेंट्रेशन जो है वो 25 ppm तक हो गया था, और उसकी वजह से बर्ड्स जो है उसमें बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स जो है, सिम्टम्स जो है वो नजर आए। द थिनिंग ऑफ द एगशेल्स ऑफ द बर्ड्स टेक्स प्लेस, देयर इज प्रीमैच्योर बर्थ ऑफ द बेबी बर्ड्स। ठीक, और प्रीमैच्योर बर्थ होने की वजह से मोर्टेलिटी रेट जो है बेबी बर्ड्स का बढ़ जाएगा, और इस तरीके से जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर एनिमल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से। ठीक है बेटे, अब हमने ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के बारे में बताना है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है वो किन कॉजेस की वजह से होता है। तो सी व्हाट दे हैव रिटन। ठीक है, देखो इन्होंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा लिखा है, पर हमने इतना थोड़ा नहीं लिखना, हम उन्हें इलेबोरेट करेंगे अच्छे से। यहाँ पे देखिए ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड रिप्लेसमेंट कैसे करना है उसके बारे में उसने बताया हुआ है। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वाटर लेवल डिक्लाइंस कॉज्ड बाय सस्टेन्ड ग्राउंड वाटर पंपिंग। ठीक है, nowadays if you are giving the example of Punjab, you know that in every field
ठीक है, हर एक फील्ड जो है उसके अंदर एक सबमर्सिबल पंप जो है वो लगाया गया है। तो what they are doing, what the farmers of Punjab they are doing, they are getting more and more crops. ठीक है, they cultivate more and more crops out of the field. ठीक है, every year जो है 3 से लेके 4 तक क्रॉप्स को निकालते हैं, and the proper methods of irrigation are not there. What they used ground water for the purpose of irrigation. ठीक है, and if the rainfall is not occurring properly, तो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर जो है सबमर्सिबल पंप से निकालते जा रहे हैं। ठीक है, they are doing the cultivation of paddy, you can give the example of that also. So उसकी वजह से वो कहते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है उसकी डिप्लीशन हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे उसका लेवल जो है वो कम होता जाएगा। अब वो कहते हैं कि किस तरीके से जो है आप ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, तो मोस्ट सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वाटर पंपिंग के यही होंगे कि वाटर टेबल जो है वो काफी नीचे चला जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और कहता है, अब वो कहते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है उसको अगर आपने फिर से क्या करना है, रिप्लेनिश करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। ठीक है बेटे, तो उस केस में आपको कहता है कि अलग अलग जो है मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो मेन कॉज जो है ग्राउंड वाटर के लेवल जो है उसको नीचे जाने की, वो ये है कि सीपेज ऑफ वाटर होता नहीं है। ठीक है, व्हाई देयर इज नॉट मच सीपेज ऑफ वाटर, बिकॉज नाउअडेज, ठीक है, मोर लैंड सरफेस इट इज कवर्ड बाय द कंक्रीट फ्लोर्स। आजकल जो कच्चा फ्लोर्स हैं वो हमारे पास कम है, और ज्यादा से ज्यादा जो सरफेस है वो पक्का फ्लोर्स के द्वारा कवर्ड है, तो सीपेज ऑफ वाटर इज वेरी लेस when normal rainfall occurs. So we have to construct more and more such type of areas, such type of things जहां पे वो कहते हैं कि पक्का फ्लोर्स जो हैं वो ना हो, सरफेस जो है वो ऊपर से कवर्ड नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन रहनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल हो, और इजीली वाटर जो है उसका सीपेज हो सके। वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स जो है उसका अवॉइड किया जाना चाहिए। ठीक है बेटे, इस आंसर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है उसमें, पर हम इसे और बड़ा बनाएंगे तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट तो हम कॉन्क्रीट फ्लोर्स जो है उनको अवॉइड करेंगे, लैंड सरफेस जो है उसको निकट रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन कवर होना चाहिए। एंड थर्ड पे आप ये लिखेंगे कि इंस्टेड ऑफ दैट, इसके अलावा जो है आपने क्या करना है, वाटर हार्वेस्टिंग शुड आल्सो बी देयर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फेचिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वी कैन यूज दैट वाटर व्हिच वी स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेस। तो बेल्स वगैरह जो हैं उसके अंदर जो है आप स्टोर कर लें, जो एंशिएंट मेथड्स वाटर के आप जानते हैं कि पुराने टाइम में लोगों ने अपने घरों में बेल्स बनाए होते थे एंड एक्स्ट्रा वाटर उसके अंदर स्टोर करके रखते थे, एंड दैट वाटर कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन। तो उस केस में ग्राउंड वाटर जो है वो आपको ज्यादा नहीं करना पड़ता। सबमर्सिबल पंप्स जो हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इंडिविजुअल सबमर्सिबल पंप, अ गवर्नमेंट सबमर्सिबल पंप शुड बी देयर, और उसी से आप जो है 8 से 9 फील्ड जो है उसको आप इरिगेट कर सकते हैं। तो अपने अपने इंडिविजुअल मेथड इरिगेशन के जो है उसकी जगह पे गवर्नमेंट मेथड जो है उनको हमें जो है वो करना चाहिए। ठीक है बेटे, पार्क्स वगैरह जो है वो बनाए जाने चाहिए, और कंक्रीट जो है, कंक्रीट से रिलेटेड जो भी फ्लोर्स हैं उनको अवॉइड किया जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पार्क्स बनाए जाएं जिससे इजीली सीपेज हो सके वाटर का। ठीक है, वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स को टोटली अवॉइड कर दें, तो ये सारे आप इसके अंदर लिखेंगे। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाई डज ओजोन होल फॉर्म ओवर एंटार्क्टिका एंड हाउ विल एनहांस्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अफेक्ट अस। ठीक है, तो अब वो कहता है कि ओजोन होल जो है इसके बनने का क्या कारण है, सोचिए क्या कारण है। हाँ जी, क्लोरीन। Due to increase in level of CFCs देखो बेटे, by एक ही चीज, developed countries. ओजोन डिप्लीशन हमेशा तभी होना है जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा एमिट होंगे। अगर हम एंटार्क्टिका की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना वो भी वेरी करता है। ठीक है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंट्रीज, व्हाट काइंड ऑफ कंट्रीज दे आर। आपको बताया था कि डेवलप कंट्रीज जो है उनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उनका एमिशन जो है वो ज्यादा है, और डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनके अंदर उतनी टेक्नोलॉजीज जो है वो एडवांस नहीं है, इसलिए वहां पे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट होते हैं पर कम है। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या लिखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय डेवलप्ड कंट्रीज and slowly they enter the stratosphere and the winds move them towards the pole.
ठीक है, कहाँ पे आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन नजर आ रहे हैं, आपको स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर नजर आ रहे हैं, एंड ब्लोइंग विंड जो है उससे वो कहता है कि वो शिफ्ट हो जाते हैं पोल्स की तरफ। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन एंटार्क्टिका ड्यूरिंग विंटर मंथ, देयर इज नो सनलाइट इन एंटार्क्टिका एंड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, तो दिस फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्लाउड्स ओवर देयर। ठीक है, ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, देखो ये आपकी जनरल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो कहते हैं कि इस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है एंटार्क्टिका के अंदर विंटर सीजन में रहती हैं कि वहां पे सनलाइट जो है वो लगभग नहीं होती है एंड लो टेम्परेचर काफी ज्यादा नीचे चला जाता है। देखो -85 डिग्री सेल्सियस कितना लो टेम्परेचर हो सकता है, तो उसकी वजह से आइस क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग विंटर नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ द विंड इट कंप्लीटली आइसोलेट्स एंटार्क्टिका एयर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जब भी विंड ब्लो होती है तो उस केस में वो कहते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होने की वजह से उसका मैक्सिमम इफेक्ट जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वैसे तो सभी जगह पे दिखाई देना था, पर यहाँ पे वो कहता है कि सनलाइट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, टेम्परेचर बहुत लो होता है और आइस क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि यहाँ पे एंटार्क्टिका के केस में वो इफेक्ट जो है वो हमें ज्यादा नजर आता है। ठीक है, आप देखें नीचे उसने और लिखा है द आइस क्लाउड्स प्रोवाइड द कैटालिटिक सरफेस फॉर द रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन एटम्स एंड देन ओजोन। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह ये आइस क्लाउड्स जो है वो काम करते हैं। ठीक है, क्लोरीन एटम्स जो है उनकी कंसेंट्रेशन जो है उसको इंक्रीज करते हैं और ये क्लोरीन एटम्स जो है वो ओजोन जो है उसका डिग्रेडेशन करते रहते हैं। ठीक, बट दिस डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन अकर्स विद द रिटर्न ऑफ सोलर रेडिएशन टू एंटार्क्टिका ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड दिस रिजल्टिंग इन थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर every year in most of the Antarctica. So this hole disappears in summer due to warming up of the air and the mixing of the Antarctica air with that of rest of the world. पर विंटर सीजन में वो कहते हैं कि ये इफेक्ट नजर आता है। ठीक है, enhanced ultraviolet radiations on earth they affect the humans and animals by many ways। तो वो आपने सीधा बुक में से ही उठा लेना, उसका आंसर आपको बताया था कि स्किन कैंसर के केसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, ब्लाइंडनेस हो सकती है जिसको हम स्लो ब्लाइंडनेस कहते हैं। फिर इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ कैटरेक्ट इन आईज, अर्लियर जो कैटरेक्ट था वो उसे एक एजिंग डिजीज की फॉर्म में कंसीडर किया जाता था, पर अब कहते हैं कि चाइल्ड के अंदर भी जो है इस तरह की कैटरेक्ट की प्रॉब्लम्स देखी जा रही है। माल फंक्शनिंग हो जाती है इम्यून सिस्टम की, सर्टेन इंपॉर्टेंट जीन्स दे गेट म्यूटेटेड, so they may be the important genes which are related with your immune system, so malfunctioning is there। higher number of mutation it takes place in the genes, तो genetic diseases जो हैं वो dominant हो जाएंगी इसकी वजह से। ठीक है बेटे, देखो ये वाला पीडीएफ मैं तुम्हें बाद में सेंड कर दूंगी, फिर इसे तुमने अच्छे से रीड कर लेना है। ये वही टॉपिक है जो नेक्स्ट हमने कल ही किया है अभी, बिश्नोई वाला। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ विमेन एंड कम्युनिटीज इन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो उसके अंदर हमने बुक के अकॉर्डिंग अमृता देवी बिश्नोई वाला केस जो है वी हैव टू डिस्कस हियर। ठीक है बेटे, अमृता देवी बिश्नोई वाला जोधपुर पैलेस वाला जो केस है वो हमने डिस्कस करना है। और इसके अलावा अगर कम्युनिटीज का आप एग्जांपल देना चाहते हो तो उसके अंदर आप चिपको मूवमेंट जो हग द ट्री मूवमेंट सुंदरलाल भगुना उसके फाउंडर लीडर थे, उसके बारे में आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोनों इंसिडेंसेस आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आ जाता है, इट इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, तो यू कैन आल्सो गिव द अकाउंट ऑफ द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको AK बैनर्जी फॉरेस्ट ऑफिसर के बारे में बताया था कि हाउ दे इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटीज इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ साल देयर इन द वेस्ट बंगाल। यू हैव टू डिस्कस दैट इंसिडेंट्स। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट मेजर्स एज एन इंडिविजुअल वुड यू टेक टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसने ये नहीं बोला कि वो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इट मे बी द एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑफ एनी काइंड। तो ऐसा इंडिविजुअल आप क्या क्या कर सकते हैं, तो जितने मर्जी आप पॉइंट बना ले, काफी सारे आपके पॉइंट्स जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है बेटे, इसने यहाँ पे शॉर्ट में देखिए लिखा है रिड्यूसिंग यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट सेफली। ठीक है, रिड्यूसिंग यूज ऑफ पॉलीथीन जो आज के टाइम में एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, डोंट डिस्पोज द वेस्ट विदाउट ट्रीटमेंट इनटू द वाटर बॉडीज। ठीक है, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन जो है, ऑटोमोबाइल्स को फ्री करना चाहिए पॉल्यूशन से। कैसे करेंगे वो भी आपको मालूम है, यू हैव टू मेक यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स और ओल्ड व्हीकल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द रोड और देयर अपग्रेडेशन शुड बी टेक्स प्लेस। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ द नॉइज पोल्यूशन बाय यूजिंग फायर क्रैकर्स। देखो नॉइज पोल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है पोल्यूशन की, तो फायर क्रैकर्स जो काफी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको रोकिए। टीवी जो है उसको एक प्रॉपर साउंड रेंज में ही आप देखेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं
वो आपकी हियरिंग एबिलिटी कम कर सकती हैं, तो उसको भी आपने ध्यान रखना है। ट्री प्लांटेशन इन स्कूल अराउंड रेजिडेंस, ठीक है, स्कूल के अंदर हमने नॉइज फ्री